myself Sarita Chaudhary, TGT Science teacher from St. Joseph Public School, Town. Students, in previous video we discussed about some of the terminologies based on this chapter number 7, conservation of plants and animals. You learned about the biosphere, biodiversity. We also discussed some of the protected areas which are used to reserve the wildlife, plants and animals को protection देने के लिए जो reserved areas हैं उनके बारे में discussion हमने किया था. We also discussed about the deforestation and its reasons. So in continuation of the deforestation topic, in today's video let's learn what are the consequences of deforestation. हमने समझ लिया कि deforestation is the clearing of forest को destroy करना, cutting of trees, that is called as deforestation. Reasons समझ लिए. अब समझते हैं कि उसके results क्या क्या हम लोगों को face करने पड़ रहे हैं और which we are going to face in upcoming years. Consequences of deforestation. Starting with the first consequence, that is increase in the pollution level of the earth. As you all know, you all must have heard about it, that the green plants they absorb the sound, वो sound को absorb करते हैं, sound की जो intensity होती है उसको वो decrease करते हैं. जितने भी pollutants atmosphere में present हैं उनको भी plant they use to absorb, उनको hold करके रखते हैं. And moreover these plants they balance the amount of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. तो अगर ये प्लांट्स को ही हम कट कर रहे हैं, इफ वी आर डिस्ट्रॉइंग, वी आर कटिंग द ट्रीज एंड फॉरेस्ट, देन द पोल्यूशन लेवल, डिफरेंट टाइप ऑफ पोल्यूशन, चाहे वो सॉइल पोल्यूशन है, चाहे वो साउंड नॉइज पोल्यूशन है, वेदर इट इज द एयर पोल्यूशन, द पोल्यूशन लेवल इन अ सराउंडिंग दैट इज इंक्रीजिंग. द सेकेंड कॉन्सिक्वेंस इज इंक्रीज इन CO2 इन द एटमोसफियर. अभी हमने बात की कि ग्रीन प्लांट्स, we all are the living organisms, and the green plants perform the basically two important functions which are photosynthesis and respiration. Respiration is being done by us also. So during the respiration we inhale oxygen gas and we exhale the carbon dioxide gas. Same thing is being done by the green plants also. ग्रीन प्लांट्स भी रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और CO2 गैस को प्रोड्यूस करते हैं. बट दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द सराउंडिंग इज फर्दर यूटिलाइज्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो हु इज गोइंग टू यूटिलाइज दैट CO2 गैस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. और अगर CO2 गैस एब्जॉर्ब नहीं होगी तो उसका लेवल एटमॉस्फेयर में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. ड्यू टू दिस इंक्रीज्ड लेवल ऑफ CO2 in the atmosphere, global warming takes place. In previous chapter we discussed in detail what the global warming is. Global warming is increment in the temperature of the earth's atmosphere. डे बाय डे ग्रेजुअली जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है एंड दैट इज कॉल्ड एज ए ग्लोबल वार्मिंग. वी लर्न द कॉन्सेप्ट ऑल्सो, हमने पूरा कॉन्सेप्ट भी हमने सीखा था कि हाउ द ग्लोबल वार्मिंग टेक्स प्लेस, कि जितनी भी CO2 या अदर ग्रीन हाउस गैसेज हैं दे मेक अ प्रोटेक्टिव लेयर इन अर एटमोसफियर. अर्थ को कवर करते हुए एक प्रोटेक्टिव लेयर का वो फॉर्मेशन करते हैं, ग्लास लाइक लेयर का. एंड दैट CO2 ग्लास लाइक लेयर allows the sun's radiation to enter. सन की हीट को वो अंदर तो आने देती हैं, बट अर्थ हीट, जो अर्थ के सरफेस से जो हीट प्रोड्यूस होती है, ग्राउंड से जो हीट प्रोड्यूस होगी, दैट हीट कैन नॉट एमिट, वो हीट बाहर नहीं निकल पाती उस CO2 की लेयर से. एंड रिजल्टेंटली द टेम्परेचर ऑफ अर्थ दैट गेट्स इंक्रीज, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. सो बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन level of CO2 is increasing, and because of level of carbon dioxide increase, the global warming level is also increasing. The third consequence of the deforestation is lowering of the level of groundwater. Now plants they have the different parts
you have studied the different parts and their functions in your 6th standard. The plant has the root system and shoot system. Root system में we study in detail about the roots of the plant. तो roots का basic function क्या है? They give the support to the plant for the affirmation, ताकि वो वहाँ पे firmly खड़े हो सके लैंड के ऊपर, तो उनको सपोर्ट देने का काम किया रूट्स ने। साथ में रूट्स एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। काफ़ी जितने बड़े ट्रीज होंगी उनकी रूट्स भी उतनी लॉन्ग लार्ज होंगी, तो वो जो बड़ी बड़ी रूट्स होती हैं वो काफ़ी डीप लेयर ऑफ अर्थ में जाके वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, और उस वाटर को फ्रॉम द रूट्स दैट वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द स्टेम, टू द ब्रांचेज एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ द ट्रीज। तो अगर प्लांट्स ही नहीं है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अंडरग्राउंड वाटर भी क्या होता जाएगा, उसका लेवल डिक्रीज होता जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस, दैट इज डिक्रीज इन द रेनफॉल। प्लांट्स आर समथिंग विच अट्रैक्ट द रेनफॉल। जितने ज़्यादा प्लांट्स होते हैं उतना ज़्यादा उस एरिया के अंदर रेनफॉल होता है। तो अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे रेनफॉल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। The next consequence is decrease in the fertility of the soil. Now because of deforestation, plants नहीं है, trees नहीं है, so the topmost layer of the soil that is exposed to the atmospheric environmental forces, like बहुत तेज विंड अगर ब्लो हो रहा है तो विंड के साथ सॉइल की जो टॉप मोस्ट लेयर है वो ब्लो हो जाती है। इफ देयर इज हैवी रेनफॉल तो रेन वाटर के साथ दैट टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल दैट गेट्स वॉश्ड अवे। तो जो अर्थ की टॉप मोस्ट लेयर है दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दैट, बहुत सारे वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ट्रीज नहीं होंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स भी क्या हो रहे हैं, वॉश अवे हो रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट सॉइल की जो फर्टिलिटी है, न्यूट्रिएंट कैपेसिटी है, दैट इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। द नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंस इज इंक्रीज द चेंजेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज लाइक ड्रॉट्स एंड फ्लड्स। उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो। अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ ऑल दीज कॉन्सिक्वेंसेज, द अल्टीमेट consequence is the disturbance in the balance of the nature। पूरा जो नेचर का बैलेंस होता है वो ही completely डिस्टर्ब हो जाता है। The one more important consequence of deforestation is desertification। अब desertification means क्या है, formation of deserts, that means the process by which a fertile land टर्न्स इनटू अ डेजर्ट। जब इन सब फैक्टर्स की वजह से अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, जो जहाँ पे ह्यूमस प्रेजेंट रहती है, वो वहाँ से रिमूव हो चुकी है, तो धीरे धीरे द लैंड कन्वर्ट्स इनटू अ बैरन लैंड जिसमें बिल्कुल भी न्यूट्रिएंट्स नहीं है। अल्टीमेटली दैट कन्वर्ट्स इनटू अ डेजर्ट, वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सो डिफॉरेस्टेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ द डेजर्टिफिकेशन। ड्यू टू द डेजर्टिफिकेशन क्या क्या इम्पैक्ट्स हमको देखने पड़ते हैं, लेट्स सी देम आल्सो। द सॉइल इरोजन टेक्स प्लेस। अब जब डेजर्टिफिकेशन होगा तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन मीन्स क्या है, सॉइल इरोजन इज मूविंग अवे ऑफ द टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल की जो सबसे ऊपर की टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, वो जब रिमूव हो जाती है आइदर विद फास्ट विंड ब्लोइंग, जब बहुत विंड स्टॉर्म ब्लो हो रहा है, या फिर जब हैवी रेनफॉल हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन। तो डेजर्टिफिकेशन अगर होगा तो वहाँ पे प्लांट्स नहीं है होल्ड करने के लिए, कंप्लीट डेजर्ट प्रेजेंट है, तो सॉइल का इरोजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सॉइल बिकम्स लेस फर्टाइल। टॉप मोस्ट लेयर में अगर थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे तो वो भी एक के साथ ब्लो हो गए या वाटर के साथ वॉश अवे हो गए, दैट मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। एंड प्लांट्स रूट्स दे होल्ड, दे बाइंड अप द सॉइल पार्टिकल्स एंड वाटर ऑल्सो। तो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस विच में लीड टू दी फ्लड, जिसकी वजह से फ्लड्स वहाँ पे हो सकती हैं। So that's all for today's video, students. You can take a quick screenshot of the screen.
and we'll continue our chapter in next video. Till then, thanks for watching.